Hello. Good morning, everyone. Friends, previous lecture I taught you what is corporate finance. I have completed corporate finance meaning, definition, and decision making. There are two decision making. Once again, I revise previous chapter. Our first chapter, introduction of corporate finance. Corporate finance, the term include two words. One is corporate, that is business or company. Second word is finance, that is money, paisa, fund. Corporate is also known as company, business firm, joint stock company. And second word, finance, that is related with money, funds, capital, shares, etc. Money management, and you can say management of money. Corporate finance, that is business finance, money fund, company finance. Definition of corporate finance. According to Henry Hogland, corporate finance concerns with primarily acquisition, that is acquired of funds and use of capital of fund by a business organization. Acquisition means that is acquire, obtain money, obtain funds for the application of money in the business. So this is the corporate finance definition. Now we will start. What are the importance of corporate finance? Corporate finance, first importance is helps in decision making, and second is help in raising capital for a project, and third importance help in research and development, and fourth is help smooth a development fund, and fifth is brings coordination between other many activities. This coordination between activities. And six is promote expansion and diversification. 6 point over. Afterwards we study here managing the risk. 8 point replace old assets. 9 payment of dividend interest. 10 is payment of taxes and fees. We will study importance of corporate finance one by one. Our first point is helps in decision making. Friends, in business there are many activities like production, sales, marketing, and so many activities are there. So that is all depends. There is the depends of availability of funds. Availability of funds decide whether which area we invest the money. So availability of fund, that is again we have decided there are so many expenses there. अगर हम लोग के पास फाइनेंस रहेगा तो ही हम लोग इन्वेस्ट करें. तो सपोज हम लोग मान लीजिए कहीं हम लोग घूमने जाते हैं और अपने पास में पैसा कम है,
और हम लोग को खाना है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना इन्वेस्ट करें, हमारे पास है कि नहीं, हम वड़ा पाव से काम चला लेंगे या कोई अच्छे से खाना खाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम लोग को देखना पड़ता है कि हम ये बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये इस पर इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या पड़ेगा, उस पैसा लगाने से लगाएंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सब सोच के कॉर्पोरेट फाइनेंस ग्रीन सिग्नल देगा कोई भी प्रोजेक्ट में कि पैसा वहाँ लगाना है या नहीं लगाना है। सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम पैसा लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी बिजनेस में जब हम फंड लगाते हैं जब तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कैसे हम लोग रेस करेंगे, इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा नया प्रोजेक्ट है। नया प्रोजेक्ट अगर रहता है, नया डेवलपमेंट करना है, नया बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। न्यू बिजनेस को हम डाइवर्सिफाइड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम लोग बैंक से बॉन्ड लेंगे, इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे ताकि हम लोग को पैसा मिल जाए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि पैसा जहाँ से रेज हो रहा है और उसका जब पैसा पड़ रहा है तो उसको जब एक्वायर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट देना है कम ही रेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इकट्ठा कर सकें, रेज कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, और इतना भी ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा पैसा लेना है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हम ज़्यादा पैसा ले लें। अगर हम पैसा ले रहे हैं तो उसको अच्छे से यूज़ करें। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दैट इज you can say research and development is important in every organization. सपोज आज क्या हो रहा है, इसमें कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में लॉकबंदी है। सभी बिजनेस के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन की खतरे की घंटी है कि अगर ऐसी कोरोना बढ़ता रहा तो कंपनी बंद हो गई, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए सभी कंट्री क्या कर रही है, अपने अपने देश में बहुत सारा पैसा लगा रही है कि किस तरीके से कि कोरोना का मेडिसिन ढूंढा जाए। अगर कोरोना का मेडिसिन मिले चाहे ना मिले, उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी और तभी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर मेडिसिन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैसा लगाएंगे तो जरूरी नहीं कि सफलता मिले ही, नहीं भी मिलता सफलता। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में कुछ नया बताने के लिए, नया कुछ करने के लिए एक जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें नया नया तब्दीली करता है, नए तरीका, नया टेक्नोलॉजी अपनाता है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए बिजनेस कॉर्पोरेशन फाइनेंस इकट्ठा करेगा तो ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कहीं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करता है और अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाता है ताकि वो बिजनेस में और अपना प्रोडक्शन बढ़ा के सेल करके और पैसा इकट्ठा कर सके। तो कैसे पॉसिबल है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड से, यानी फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, फाइनेंस रहेगा तो ही वो कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। In business, there are many expenses like purchase of raw material, salary paid, and there is need of so many finance to invest for the smooth functioning of business. So
बिजनेस में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, जो सेल्स प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस में अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अगर फाइनेंस अवेलेबल होगा तो ही हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जब बिजनेस स्मूथ तभी चलेगा जब पैसा रहेगा तो ही चलेगा। अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हुआ तो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद आता है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। जब कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करना है तो उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और जब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होगा तो हम सेल करेंगे। अगर प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस नहीं होगा तो आगे चीज़ें कैसे होगी, कैसे मार्केटिंग होगा। तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। तो एक दूसरे के सहयोग से ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, तालमेल बैठा के रखेंगे। तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, ये फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। बिफोर दिस एक और पॉइंट है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस को एक्सपांड करना यानी बिजनेस का विस्तार करना। जब बिजनेस डेवलप कर रहा है तो उसको विस्तार की जरूरत पड़ती है। और कई बार बिजनेस में एक ही टाइप का प्रोडक्ट चलता है, तो क्योंकि यहाँ कंपटीशन है बहुत सारी चीज़ों में, तो एक दूसरी कंपनी नया प्रोडक्ट लाती है, नया टेक्निक लाती है, ताकि उसका बिजनेस मार्केट में चले। तो इसके लिए अपने प्रोडक्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए नया कोई काम से हट के काम करना पड़ेगा। यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक ही चीज़ पर प्रोडक्ट, जैसे रिलायंस कंपनी है, पहले उसका मेन बिजनेस था पेट्रोकेमिकल बनाने का, फिर वो धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन में आया, फिर ऐसे ही जियो मोबाइल। तो ऐसे ही एक ही टाइप के बिजनेस, ताकि बिजनेस में अगर एक ही टाइप का बिजनेस रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो आगे की तैयारी करते रहना चाहिए कि अपने आप को टिकाने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, लोगों को कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के प्रति। और नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क मीन्स जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, या कंपनी में बहुत सारे स्ट्राइक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसे रिजर्व में रखने पड़ेंगे, ताकि ऐसे समय में अगर बिजनेस का नुकसान हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, तो जो उसके वर्कर हैं, काम करने वाले, उसको सैलरी टाइम पे दिया जा सके। अभी इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, तो कोई भी लॉकडाउन होता है तो उस समय फैक्ट्री बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो कंपनी पहले से तैयारी करके रखती है कि ऐसे जो सडनली कोई भी संकट कंपनी में आ गया तो कुछ पैसा रिजर्व रखेगा, तो ऐसे टाइम में वो पैसे को यूज़ कर सकेगी और ऐसे संकट से उसे निपटा जा सकता है, उसके पास रिजर्व मनी रहेगा। तो फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस उस समय जरूरत उसकी पड़ेगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगा तो ही हर चीज़ों से वो निपट सकेगा। इसके बाद है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। कई बार बिजनेस में 10-20 बरस से कोई भी मशीन है वो एक टाइम आउटडेटेड हो जाती है। जब उसका कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, जैसे अपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन सीखा, तो एक टाइम चलते चलते उसका लाइफ टाइम समाप्त हो जाता है,
और नई टेक्नोलॉजी आती है। नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, नया टेक्निक आता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको बिजनेस में उसको हटा के नया लाना पड़ता है। तो नया मशीन आएगी तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, तो उससे हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगा। तो इसके लिए हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्टर होता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी से इक्विटी शेयर्स परचेज करता है, तो वो चाहता है कि वो जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके बदले उसे क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलेगा। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है तो उसको वो शेयर होल्डर के पैसे के बदले में उसको डिविडेंड देना पड़ता है। और कंपनी बहुत सारे बैंक से, ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, ये सब ली रहती है, तो उसके बदले में इसको क्या, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कैसे देगी, डिविडेंड कैसे देगी, जब उसके होगा, उसके पास फाइनेंस होगा तो ही दे सकती है। तो ये फाइनेंस रहेगा तो ही पेमेंट कर सकती है। तो इसके लिए बिजनेस में क्या, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी हर एक बिजनेस हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, सबको अपने इनकम पे या गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स होता है, ये सब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे फीस रहती हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, और ऐसे अलग फीस रहती हैं जिसको कि कंपनी को समय समय पर देना पड़ता है। तो ये सब कभी होगा जब फाइनेंस होगा, तो फाइनेंस होने की वजह से तो ही हम उसको दे सकते हैं। अगर फाइनेंस रहेगा तो हम लोग टैक्सेस नहीं दे पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे। तो हर एक बिजनेस में टैक्स पे करने के लिए, फीस पे करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फंड की। तो इस प्रकार बिजनेस कॉर्पोरेशन कंपनी जो होती है, वो पैसा उसके पास अवेलेबल होगा तो ये बहुत ढेर सारे एक्सपेंसेस कर सकती है, अच्छे से उसको एक्वायर करेगी और उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगी। और उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा कि ज़्यादा वो शेयर से पैसा इकट्ठा नहीं करे, यानी इतना पैसा ले जितना इसको ज़रूरत है, और पैसों का हमेशा इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहे। तो इस प्रकार हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में वंस अगेन हम लोग रिवाइज करते हैं कि अगर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस रहेगा तो उनमें कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा रहेगा, पैसे की अवेलेबिलिटी रहेगी, और पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ये अपने को देखना पड़ेगा। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद कंपनी को ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि वो कितना पैसा लगाए, कहाँ लगाए। सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे रेज होगा, तो इसके लिए अपने को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें पैसा। थर्ड ये हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी प्रोडक्ट में नया कुछ करने के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तो ही प्रोडक्ट में नयापन आएगा, हम लोग नया इनोवेशन कर सकेंगे, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट इन हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म को स्मूथ चलने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ही बिजनेस रन कर सकेगा। नेक्स्ट है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। इन बिजनेस देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट
परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये सब डिपार्टमेंट में पैसा बराबर जाएगा, यानी हर एक डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, अगर पैसा प्रोडक्शन में रहेगा तो ही हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाद में इसको आगे का सेल्स कर सकते हैं, फिर उससे पैसा आएगा। फिर इस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए। फिर प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी बिजनेस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे। बिजनेस का जो एक्सपांशन होगा और एक ही लाइन के प्रोडक्ट को छोड़ के अलग से हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए या कंपटीशन में रहने के लिए, तो फाइनेंस होगा तो ही ये कर सकेंगे। फिर मैनेजिंग रिस्क, कोई भी रिस्क आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोरोना वायरस, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो कंपनी रिसर्च करती है, रिसर्च करेगी, नया टैबलेट लाएगी, दवाई, उसका वैक्सीन तैयार करेगी, और वैक्सीन अगर मेडिसिन मिल गया तो कोरोना वायरस जल्दी से जा सकता है और हम लोग लॉकडाउन से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, जो आउटडेटेड एसेट्स है, मशीनरी है, उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ओल्ड मशीन हो गई है, उसकी कैपेसिटी समाप्त हो गई, तो इसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कंपनी में शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देने के लिए अगर पैसा रहेगा तो ही हम लोग डिविडेंड और इंटरेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। तो जैसे जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है, बहुत सारी फीस भरने रहते हैं कंपनी को टाइम टू टाइम, तो इसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और हर एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस रहेगा, उसका अच्छे से हम यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ काम करने के लिए फाइनेंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर फाइनेंस है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। आप लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें, पूरे 10 पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, और जैसे कि मार्केट में बुक नहीं है, आप अभी समझे रहेंगे, जब पढ़ेंगे तो उस समय आप पूरा इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।